અમારા મહેશભાઈ પનમાની સર, જેઓ 45 વર્ષથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે કાર્યરત છે, રોયલ કોચિંગ ક્લાસીસના ઓનર અને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર, જે આપણે આ જગ્યા જોઈ રહ્યા છે તેનું આખું મેનેજ અને કરતા હરતા આપણે ગણી શકીએ એવા, અને અમારા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના એક્સપોના એજ્યુકેશનલ એક્સપોના એ ચેરમેન છે એવા મહેશ સરને હું વિનંતી કરું છું કે આપ પૂર્વ ભૂમિકા બાંધશો. Good morning, friends. The program is scheduled for 10:30 and it is 10:31, so it's my duty to start at right time and to complete it at right time. Chamber of Commerce एक સેવાભાવી સંસ્થા 1940 માં સ્થપાયેલી, આજે 85 વર્ષનો માઇલસ્ટોન પૂરી કરી ચૂકી છે. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાં ગત વર્ષથી એક સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી સમજીને હેલ્થ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ વિજયભાઈ મેવાવાળાના ચેરમેનશીપ અંદર લગભગ 14 પ્રોગ્રામ અવેરનેસના થયેલા હતા અને 6 જૂનથી અમારા ડાયનેમિક પ્રેસિડેન્ટ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસીએ ચાર્જ સંભાળ્યો છે અને એમની ઈચ્છા હવે 14 ને બદલે 40 કરવાની છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન 14 એન્ડ 40. સો આ 40 પ્રોગ્રામમાંથી લગભગ 2 પ્રોગ્રામ અમે પાછલા 2 રવિવારે કરી ચૂક્યા છે. પહેલો પ્રોગ્રામ અમે શરૂ કર્યો ડૉક્ટર જગદીશભાઈ સાખિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ, અને બીજો પ્રોગ્રામ ગયા રવિવારે એ પણ કેન્સર વિશે જ હતો. કૌશલ પટેલ. કેન્સર એક એવી બીમારી થઈ ગઈ છે જેને માટે સૌથી વધારે જાગૃતિ આપણે માંગી લે છે. તો એ સંદર્ભમાં અમારા મેક્સિમમ પ્રોગ્રામ કેન્સર વિશે આવે એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ. અને આજે જે આપણને શ્રેષ્ઠ તબીબ મળ્યા છે ડૉક્ટર સોનિયા, એ તમને સર્વાઇકલ કેન્સર વિશે આખું માર્ગદર્શન આપશે. એટલે અમારા નિખિલભાઈ મદ્રાસી સર આવે ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે વાર્તાલાપ કરીએ. અને ખાસ કરીને મારો ઈરાદો એ છે કે તમારામાંથી એમને કોઈને શરૂઆતમાં કંઈક પ્રશ્નો પૂછીને પોતાની પૂર્વ ભૂમિકા બાંધવી હોય તો આપ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો અને જવાબ તમને આખરમાં મળશે. અત્યારે તમારા સવાલો અમારે કલેક્ટ કરવા છે. સો પ્લીઝ, જે કોઈ સવાલો પૂછવા માંગતા હોય, રેઝ યોર ફિંગર્સ. સો નિખિલભાઈ મદ્રાસી, આપણા પ્રેસિડેન્ટ, ડાયનેમિક પ્રેસિડેન્ટ આવી ચૂક્યા છે. આપણે એમનું કાર્યોના ગડગડાટથી સ્વાગત કરીએ. આ સાથે જ હું અમારા ચેમ્બરના પ્રેસિડેન્ટ એવા નિખિલભાઈ મદ્રાસી સરનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. નિખિલ સરને વિનંતી છે કે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સનો આપ પરિચય આપશો અને આજના કાર્યક્રમનો આપ પ્રસ્તાવના મૂકશો. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને આજના ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ હેલ્થ સિરીઝના સેશનમાં આપણે ખૂબ ગંભીર વિષય પર ચર્ચા કરવાના છે અને તે સર્વાઇકલ કેન્સર વેક્સિન. મને ડૉક્ટર જયેન્દ્રભાઈ કાપડિયા હંમેશા સોનિયાબેન કે નિખિલ 60 થયા, આટલી વેક્સિન 60 પછી લેવી જરૂરી છે, પણ જાગૃતિ ખૂબ ઓછી છે અને એને કારણે જે રોગો આપણે નિવારી શકીએ છીએ તે રોગો પણ આપણે નિવારી શકતા નથી, કારણ કે આપણે એની વેક્સિનેશન મુકાવતા નથી. એક સર્વે એવું કહે છે કે એવરેજ આયુષ્ય વધ્યું છે, પણ આયુષ્ય વધવાની સાથે ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ પણ વધવી એટલી જરૂરી છે, જે નથી. એટલે આપણે 85 વર્ષ સુધી સરેરાશ જીવી જઈએ, પણ કેવું જીવીએ એની આપણને ક્યારેય પણ માહિતી હોતી નથી. અને સર્વે એમ પણ કહે છે કે 80% લોકો પછી ઘરની અંદર એવા અલખામણા થઈ જાય છે કે ઘરવાળા ઈચ્છે કે હવે આ છૂટે તો સારું. એટલે આપણે એવી પરિસ્થિતિમાં નહીં મુકાવવું પડે, એટલા માટે જ આ પ્રકારના કાર્યક્રમોનું આયોજન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કરે છે અને કરતી રહેશે. આ મૂળ ચેમ્બરની પ્રવૃત્તિનો ભાગ નથી, પરંતુ ચેમ્બર
એ સમાજનો એક એવો અવિભાજ્ય અંગ છે કે જેની સાથે હેલ્થ સ્વાભાવિક રીતે સંકળાયેલું છે. કારણ કે પબ્લિક હેલ્થ સારું હશે એટલી જ ઇન્ડસ્ટ્રી વધારે સારી રીતે ચાલશે. અહીં જેટલા બી મિત્રો ધંધા અને ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે એ બધા જ મિત્રોનું આરોગ્ય એ અલ્ટિમેટલી આ સમાજનું આરોગ્ય છે એમ કહું તો ખોટું નથી. ડૉક્ટર સોનિયાબેનનો પરિચય તો આપવામાં આવશે, પરંતુ ખૂબ સંનિષ્ઠ તબીબ તરીકે કંઈક સમાજને માટે કરવાની તમન્ના સાથે તેઓ પોતાનું જીવન વિતાવી રહ્યા છે એનો અમને બહુ આનંદ છે. અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના તેઓ ખૂબ નજીકના ભાગ છે એનો પણ અમને સવિશેષ આનંદ છે. સોનિયાબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને આવકાર. અમારી ટીમ ખૂબ સશક્ત અને સક્ષમ છે. 52 સપ્તાહ એટલે 52 રવિવાર, પરંતુ એમાંથી આપણે કેટલાક રવિવાર છોડી દઈએ દિવાળી સહિતના, તો બી 48 કાર્યક્રમો કરવાની અમારી નેમ છે. એની હેલ્થ કોન્ક્લેવ પણ આપણે આવતા મહિનામાં કરવાના છીએ, જે 3.5-4 કલાકની હશે અને તે ત્યાં સરસાણા થશે, જેમાં નેશનલ લેવલના તબીબોને બોલાવવામાં આવશે. પરંતુ આ પાછળ બહુ મોટી ટીમ કામ કરે છે. અમારો સ્ટાફ, અમારી પાસે આટલું મોટું સ્ટ્રક્ચર છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એટલે એ બધું શાંતિથી પતી જાય. પણ તબીબ નક્કી કરવાથી માંડીને એની મોનિટરિંગ વ્યવસ્થા ગોઠવવી એ પણ બહુ અઘરું કામ છે, જે આસાનીથી અમારા ડૉક્ટર પારુલબેન વડગામા જેવા હેલ્થ કમિટીના ચેરપર્સન છે, જગદીશભાઈ વગાસિયા કો ચેરમેન છે, ડૉક્ટર રાજનભાઈ દેસાઈ અમારા ખૂબ નવો યુવાન તરવરાટવાળો ચહેરો છે, અને આ જે આખું બિલ્ડિંગ છે એ એસજીસીસીઆઈ એજ્યુકેશન એન્ડ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર છે, જે અમે લોકોનું ભવિષ્ય બનાવીએ છીએ. એના વાઇસ ચાન્સેલર મહેશભાઈ બમલાની છે, અને આ બધા મિત્રો હોય એટલે અમારે માટે આ બધા કાર્યો ખૂબ સરળતાથી થતા હોય છે. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એટલે 13,500 સભ્યો અને 150થી વધુ એસોસિએશનોનું પીઠબળ ધરાવતી સંસ્થા છે, અને ઉમરગામથી ભરૂચ સુધીનું આપણું કાર્યક્ષેત્ર છે. સરકારની અંદર અસરકારક અને ધારદાર રજૂઆતો અલગ અલગ પ્રશ્નોની, 12 થી 15 એક્ઝિબિશન્સ, 300થી વધારે આ પ્રકારના કાર્યક્રમો, સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ સંદર્ભની અમારી જાગૃતિ, અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો બાંધીને નિકાસ કેવી રીતે વધારવી એ હેતુથી અમે આગળ વધી રહ્યા છે. ત્યારે ચોમાસાની આ સુંદર મજાની સવારે આપ સૌનું સ્વાગત કરતા અત્યંત આનંદ થાય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ચેમ્બર વતી ડૉક્ટર સોનિયાને હું પુષ્પગુચ્છ અને સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરીશ. આ સાથે ચેરમેન એજ્યુકેશન એન્ડ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના મહેશ પનમાની સર, આપને વિનંતી છે કે આપ ડૉક્ટર સોનિયા ચંદાની મેડમનું પરિચય આપશો. સુરતના મેડિકલ ક્ષેત્રે એક એવું નામ મેડમ સોનિયા ચંદાની કે જેનો પરિચય આપવા માટે શબ્દો ઓછા પડે. એમના પિતાશ્રી અહીં ઉપસ્થિત છે. એ હેમરાજ ગંગવાનીજીની સુપુત્રી ડૉક્ટર સોનિયા ચંદાની 1971માં મુંબઈ ખાતે જન્મેલ, અને મુંબઈ અને દિલ્હી ખાતે શિક્ષણ મેળવ્યા પછી એમણે ઇન્દોરમાં MBBS પૂર્ણ કર્યું, અને તે 1992માં એમણે MBBS પૂરું કર્યું, અને 1997માં એમણે બોમ્બે કેઇમ હોસ્પિટલમાંથી MDની ડિગ્રી મેળવી. અને આ આખી શૈક્ષણિક સફરમાં બે બહુ નોંધપાત્ર બાબતો છે.
અને એમાંની પહેલી બાબત છે કે ઓલ ઇન્ડિયા પીજી એક્ઝામમાં એમનો 39th રેન્ક હતો આખા ભારતમાં. અને આ શૈક્ષણિક કારકિર્દીમાં એમણે 13 વખત ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા છે. એટલે મેડિકલ ક્ષેત્રે જેને કહીએ ને એક અવિરલ સિદ્ધિ છે. ત્યાર પછી બી એમણે પોતાની જે ટ્રેનિંગ છે એ ટ્રેનિંગ સિંગાપોર ખાતેથી, ઇટલીમાં, અને છેલ્લે જે એમડીની ડિગ્રી લીધી એમણે ડિપ્લોમાની જે ડિગ્રી લીધી એન્ડોસ્કોપી, ડિપ્લોમા ઇન ગાયનેકોલોજીકલ એન્ડોસ્કોપી એ જર્મનીમાંથી લીધી. એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે પણ એમણે આ ખૂબ ખ્યાતના મેળવેલી છે. એટલે એવા આપણા ડૉક્ટર કે જે પોતાની એક સરસ મજાની હોસ્પિટલ ચલાવી રહ્યા છે. તમે કદાચ જોઈ હશે બોમ્બે સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, લગભગ 40,000 સ્ક્વેર ફીટ એરિયામાં ફેલાયેલી ટોપ ફ્લોરની ટોપમોસ્ટ હોસ્પિટલ છે, જ્યાં લગભગ દરેક બાબતની સારવાર થાય છે. એમના પિતાશ્રી આ વયે પણ એનું સરસ રીતે સંચાલન કરી રહ્યા છે. એટલે એનો પણ આપણે આનંદ હોવો જોઈએ. મારે કહેવું છે કે એમણે ઘણા બધા પેપર્સ અને રિસર્ચ પેપર મૂક્યા છે અને એ પબ્લિશ થયા છે. મેડિકલ એસોસિએશન્સ જે કહેવાય છે IMA, એમાં પણ એ ચેરપર્સન ગુજરાત છે. એ બી એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ છે. SGCCI હેલ્થ અવેરનેસ પ્રોગ્રામમાં અમારા ખાસ સક્રિય સભ્ય છે અને એમાંથી પણ એમણે સરસ મજાનો એક એવોર્ડ મેળવ્યા છે. એટલે હું એ બાબતમાં પણ આપને ખાસ ધ્યાન દોરીશ. વધુ સમય ન લેતા આપણે એમને જ સાંભળીએ કે ભાઈ કેન્સર જેવા રોગ અને તેમાં સર્વાઇકલ કેન્સર અને આ બધી બાબતોમાં એવું જે ઊંડું જ્ઞાન ધરાવે છે એનું તમને જાણકારી આપે અને તમારા મનમાં થતા પ્રશ્નોનું તમે નિરાકરણ કરી શકો. સાથોસાથ હું તમને ખાસ વિનંતી કરીશ કે એકવાર તમારે આ બોમ્બે સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ કે જે અલથાણમાં આવેલી છે, શ્યામ મંદિર પાસે, ત્યાં એકવાર વિઝિટ કરજો. વર્ષો પહેલાં તો મેડમ અમારા ઘર પાસે જ સેટેલાઇટમાં પોતાની ક્લિનિક ધરાવતા હતા, પણ હવે એમને બહુ મોટી ક્લિનિક ખોલેલી છે. તમે એકવાર મુલાકાત લો. મારી તો એમના પપ્પા સાથે વાતચીત થઈ છે તે મુજબ જો તમે બોમ્બે સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલની મેમ્બરશિપ મેળવો અને એ મેમ્બરશિપ મેળવવાથી તમને ઘણી બધી ટ્રીટમેન્ટો રાહત દરે અથવા તો જેને કહીએ કે સરસ કેશલેસ ફેસિલિટીમાં તમને મળી જાય એવી ઘણી બધી વ્યવસ્થા એમણે કરી છે. આ અંગે તમારે જે ડિટેલ લેવી હોય તો એમના ફાધર પાસેથી પણ લઈ શકો છો, મેડમ પાસે પણ લઈ શકો છો. મતલબ તમારે એક સમય કાઢવો પડે અને ત્યાં પહોંચો ને ચેમ્બરનું નામ દેશો ને તો 1-2 ટેસ્ટ તો મેડમ તમને ફ્રી કરી આપશે. ફૂલ બોડી ચેકઅપ જે છે એ નિયર અબાઉટ 4,000 જેવું કોસ્ટિંગ થતું હોય છે. પણ તમે ત્યાં પહોંચો બોમ્બે હોસ્પિટલ, હું મેડમને કહીશ કે તમારી પાસે જો કાર્ડ હોય ને તો બધાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેજો જેથી આપ પહોંચી શકો. ચેમ્બરનો એક જ ઈરાદો હોય છે કે મેક્સિમમ ફાયદો જેને કહીએ ને એ તમારા સુધી પહોંચે. બરાબર ને? એટલે એ બાબતમાં મેં મેડમને વિનંતી કરી છે. એમના ફાધર પાસેથી બી તમે આખી એક સરસ મજાની યોજના છે. બહુ ઓછા રૂપિયામાં મેમ્બરશિપ મેળવીને તમારે બેફિકર બની જવાનું છે. જસ્ટ એક ફોન કરશો તો તમે ત્યાંથી સેવા મેળવી શકશો. હું નથી ઈચ્છતો કે તમે માંદા પડો કે આ થાય, પણ સંજોગો વસાત માનવીને થાય તો એની ઝડપથી કેવી રીતે સેવા મળે એ માટે તમે આ હોસ્પિટલનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. આ કોઈ જાહેરાત નથી, આ તો માત્ર તમારી સુવિધા વધારવા માટેના સૂચનો છે.
That's all. Madam, now the floor is yours. જી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર મહેશ સર. આ સાથે જ હું મેડમને વિનંતી કરું છું કે આપ આપનું લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરશો. આ સાથે જ અહીં ઉપસ્થિત દરેક પ્રેક્ષકોને વિનંતી છે કે આપ વ્યસ્ત હશો પણ આપની વ્યસ્તતા બાજુવાળાને ના ખબર પડે એટલા માટે આપનો ફોન સાયલેન્ટ રાખજો. इस सोच में हूँ कि आम हूँ या कुछ खास हूँ मैं, जिंदगी का बदलता हुआ एहसास हूँ मैं, सबकी तो ना सही पर कुछ की तो आज ज़रूर आस हूँ मैं. सो थैंक यू सो मच. संडे सुबह सुबह इतने सारे लोग हमारे लिए यहाँ हैं. ज़रूर आप लोग अपनी सेहत के बारे में कुछ जानने के लिए यहाँ आए हैं और कुछ ही मिनटों बाद आप सब ब्रांड एम्बेसडर बन चुके होंगे. आपके पास इतनी जानकारी और एक सर्टिफिकेट होगा कि सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचें, उसकी वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, कहाँ से ले सकते हैं, ये पूरी जानकारी भी आपके पास होगी और आप सबके नंबर्स हम देंगे. उससे आपको एक ई सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, यानी आप सब ने ये प्रोग्राम अटेंड किया और आप अब इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं. तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इतने बड़े नंबर्स में आज एम्बेसडर्स यहाँ से आएंगे. शायद पूरे देश में ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा होगा कि इतने सारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और हमारे चेंबर के लिए बहुत गौरव की बात है. चेंबर से लगभग मैं पिछले 22 साल से जुड़ी हूँ. यहाँ का पहला सर्वाइकल कैंसर का प्रोग्राम हमने इसी हॉल में लगभग 18 साल पहले किया था और इस यहाँ पीछे हमने पर्दे लगाकर पैप्समियर लगभग 150 चेंबर की महिलाओं का किया था. तो तब से हम इस प्रोग्राम जागरूकता के लिए जुड़े हुए हैं. और ये जो बॉम्बे हॉस्पिटल है, पहले इसका नाम बॉम्बे मैटरनिटी एंड सर्जिकल हॉस्पिटल था जब मैं बॉम्बे से 22 साल पहले आई. लेकिन अब जैसा अंकल ने बताया कि बॉम्बे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया है. तो रहा तो BMSH ही, लेकिन पिछले 15 सालों से एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हमने किया है, क्योंकि जीना यहाँ मरना यहाँ, सूरत सिवा जाना कहाँ. तो BMSH यानी बने मेरा सूरत हेल्दी. आप अगर गूगल पर भी डालेंगे तो आपको ये मिलेगा. और सूरत हेल्दी कब बनेगा? जब हम अपने लिए खुद काम करेंगे. हमारे पास कितनी भी वेल्थ हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अगर जिस प्रकार का स्वास्थ्य हम चाहते हैं वो ना हो तो फिर जीवन का आनंद नहीं आता. और स्वास्थ्य हमारी खुद की जिम्मेदारी है. और अब इतनी साइंस एडवांस कर चुकी है, जैसे कोरोना में वैक्सीन जो बने इंडिया ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए और हमें बहुत फ़क्र है कि कोरोना में सबसे कम नुकसान हमारे देश को हुआ. हमने बाकी देशों को भी बचाया और अपने यहाँ पर भी हमने अमेजिंग रिजल्ट्स दिए. तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी जब मैंने पहले 15 साल पहले ये काम शुरू किया, सूरत की पहली 100 कैंसर वैक्सीन हमने दी एक साथ. उस कंट्री से लोग हमें मिलने आए कि ये कौन सा हॉस्पिटल है जो 100 कैंसर वैक्सीन सूरत शहर में 15 साल पहले जस्ट वैक्सीन बनी है ले रहा है. और मेरे साथ गीता दीदी हैं. हमने 10 बच्चियों को एक साथ हमारे समाज की चेयर पर बिठाकर, आई थिंक 12-15 साल पहले की ये बात है, और काफ़ी समाजों ने उसके बाद एक एक दिन में 100 वैक्सीन दिए. और अब आई एम वेरी प्राउड कि ये वैक्सीन हमारे देश में बन रही है. और इस कैंसर के बारे में हम ये जानकारी, मैं खुद लगभग 10,000 स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनेकोलॉजिस्ट को दे चुकी हूँ. ये सर्टिफिकेट मुझे अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और कैंसर फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने दिया है. गुजरात की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, इसलिए मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपसे बात कर रही हूँ. और ये ट्रेनिंग अब हम IMA के डॉक्टर्स को भी दे रहे हैं. तो हमें जिम्मेदारी मिली है कि अब हमें 10,000 IMA के डॉक्टर्स को भी इस बारे में ट्रेन करना है. आपके प्रोग्राम के तुरंत बाद हमारा एक और प्रोग्राम मेरिट में ही आज है. तो पर फिर मुझे लगा कि मेरे पास ही क्यों आ रहा है ये सर्वाइकल कैंसर बार बार. मतलब मैं ये हमेशा सोचा करती थी कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है. लेकिन कुछ ही समय पहले मेरी बुद्धि जागृत हुई और मुझे पता चला मेरा जन्म दिवस जो है वो 4 फरवरी का है. और 4 फरवरी अगर आप गूगल करेंगे तो वो सर्वाइकल कैंसर डे है.
तो ये मुझे समझ में आने में 55 साल लग गए। ये तो केवल बातें थी। अब हम समझना चाहेंगे कि स्त्री शरीर जो है और इवन पुरुषों में ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ना दी जाए तो क्या क्या हो सकता है और देने से किस तरह के फायदे होंगे, राइट। तो ये पूरे प्रोग्राम में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कैंसर के बारे में, और हमारा जो सपना है और मोदी जी का जो विजन है कि 2040 तक हमारा देश कैंसर मुक्त होगा, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर मुक्त होने के लिए। और बहुत तेज़ी से ये कैंसर्स फैल रहे हैं। शायद आपके ध्यान में भी अब आता होगा कि फैमिली में कहीं ना कहीं किसी न किसी को न्यूज़ आती है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, सर्वाइकल कैंसर हुआ, लिवर का कैंसर हुआ। और इस बारे में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स हर मीडिया पर कर रहे हैं। पृथ्वी पर कई तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया, जीवाणु मौजूद हैं। एक्चुअली हमसे ज़्यादा तादाद उन्हीं जीवाणुओं की है। उनमें से कई जीवाणु हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो ना हो तो संतुलन बिगड़ जाएगा, हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उनमें से कुछ जीवाणु, खास करके वायरसेस, ऐसे हैं जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानकारी हैं। और अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि अच्छे कौन से हैं और बुरे कौन से हैं। अगर अच्छे जीवाणु हमारी चमड़ी पर ना हो, हमारे शरीर के अंदर ना हो, तो मानव जीवन संभव ही नहीं। लेकिन उनकी तादाद अच्छी रहे और हमारे अंदर बुरे जीवाणु प्रवेश ना कर सके, यानी हमारी अपनी इंडियन आर्मी स्ट्रांग रहे और पाकिस्तानी आर्मी अटैक ना कर सके, उसके लिए जीवन में एक संतुलन लाना बहुत जरूरी है। तो बीमारियों की जड़ को अगर हम पकड़ें तो कोई ना कोई टॉक्सिन पॉल्यूशन के थ्रू हमारे अंदर जा रहा है। हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम शायद खुद ही अच्छी नींद लेना नहीं चाहते, विचारों के साथ सोते हैं। कई बार बहुत नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर घर कर जाते हैं। हम में से कईयों को एक्सरसाइज करना सख्त नापसंद है, जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। और स्ट्रेस, माने बिना किसी वजह का चिंतन और उससे जुड़ा तनाव हम अपने साथ रखते हैं और अपने अंदर इतनी सारी टॉक्सिन्स खाने के रूप में, गलत समय पर पानी पीने के रूप में हम डालते रहते हैं। और इस सब से क्या होता है, हमारी बाउल यानी डाइजेशन सिस्टम वीक होता है, डायबिटीज़ होने लगता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। और ये लाइफस्टाइल रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके कारण धीरे धीरे हमें कैंसर होने का चांस भी बढ़ने लगता है। कैंसर हमारे अंदर एक जीन के रूप में मौजूद होता है जब से हम पैदा होते हैं, यानी हम सब के अंदर ऑन्कोजीन्स हैं जो कैंसर बना सकते हैं। लेकिन बीज को अगर पोषण ही नहीं मिले तो वृक्ष नहीं बनेगा। तो कैंसर जीन को पनपने का मौका हमारे गलत रहन सहन से हम खुद ही दे देते हैं, राइट। और महिलाओं में अक्सर क्या होता है कि सही समय पर अगर बच्चा ना हुआ, बहुत लेट आजकल शादियां हो रही हैं, बहुत लेट बच्चे हो रहे हैं। और कुछ समाज में ऐसे है कि 18 साल में शादी, 19 साल में एक बच्चा, 21 साल में दूसरा बच्चा, वो भी समय ठीक नहीं है। सही समय है 25 से 30 के बीच में। तो बहुत जल्दी या बहुत लेट प्रेगनेंसी होना। फिर कुछ समाजों में हफ्ते में एक बार नहाने का प्रचलन है, हमारे यहाँ तो फिर भी हम दिन में 2 बार फ्रेश हो जाते हैं। हम लोगों का हाइजीन अच्छा होता है। वेस्टर्न कल्चर में आप देखें तो वो लोग पानी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उनके यहाँ साफ सफाई की अलग सुविधाएं हैं। और खाने पीने में घर में भोजन तो सब होता है, लेकिन अक्सर फल, सलाद, अंकुरित अनाज या सही तरह का पोषण हम नहीं लेते हैं। और ये सब न लेने के कारण वुमेन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है हार्मोन्स बदलने लगते हैं, मेनोपॉज की तरफ जाते हैं तो भी सेल्स बदलने लगते हैं। और अक्सर इमोशनल होने के कारण महिलाओं में एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे विचार आते रहते हैं और वो भी कैंसर बढ़ने को प्रमोट करते हैं। प्रेगनेंसी शायद 1 या 2 बार ही हम चाहते हैं, लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी आती हैं। प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए भी कई बार हम हार्मोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार डॉक्टरी सलाह से यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार केमिस्ट से लेकर कर रहे होते हैं। डॉक्टर ने तो एक बार समझाया होगा लेकिन हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं।
तो ये छोटे 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 फैक्टर्स हमारे अंदर बहुत सारे गलत बदलाव लेके आते हैं। अब ये जो मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें हमें पता चल रहा है कि सर्वाइकल कैंसर कहाँ कहाँ कितना है। तो जो बहुत डार्क कलर्स हैं उनमें आप देखते हैं अफ्रीका है, और अफ्रीका में हम जानते हैं एड्स भी बहुत ज़्यादा है, इम्यूनिटी काफ़ी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो उनमें सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा है। अमेरिका का ऊपर वाला भाग देखें तो वहाँ नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो कोने में है, ऑस्ट्रेलिया में हम देख रहे हैं सर्वाइकल कैंसर मुक्त वो कॉन्टिनेंट है, वो देश में अभी पेशेंट्स ही नहीं है सर्वाइकल कैंसर के, और उनके स्टूडेंट्स अपने पास यहाँ इंडिया में ट्रेनिंग लेने आते हैं सर्वाइकल कैंसर की। तो हम उन्हें ट्रेनिंग क्यों दें, हम भी सर्वाइकल कैंसर मुक्त हो जाएं, है ना। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अगर हम जान लें कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक है। हर रोज 200 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु पा रही हैं, और डायग्नोज तो और भी ज़्यादा हो रही है। अभी एक प्लेन क्रैश हुआ था, हम सबको बहुत दुख हुआ, 200 से ऊपर जाने उसमें अचानक से चली गई, लेकिन यहाँ तो ये रोज़ हो रहा है। 1 घंटे में मतलब जब तक हम आपस में बातचीत कर रहे हैं उसमें लगभग 8 से 10 महिलाओं की मृत्यु रोज़ सर्वाइकल कैंसर से हो रही है, और हमें कारण भी पता चल चुका है कि सर्वाइकल कैंसर क्यों हो रहा है। तो अब ये वक्त आ गया कि हम सही एक्शन लें। इंडिया का अगर हम देखें तो लगभग 1.25 से 1.5 लाख केस नए हमारे देश में आते हैं। ये काफ़ी कम डेटा हमें पता है, एक्चुअल फिगर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि कुछ ही कैंसर हॉस्पिटल्स में रजिस्टर होते हैं, बाकी कई बार डेथ हो जाती है, हमारे पास पूरा डेटा भी नहीं होता। और लगभग 80,000 मृत्यु हर साल हमारे देश में हो रही है। तो हम नंबर 1 हैं इस समय सर्वाइकल कैंसर से, जिन्हें बचाव करने की सख्त ज़रूरत है। और अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो ये दर बढ़ जाएगी, और लगभग 1.5 गुना, मतलब लगभग 2 लाख मृत्यु, तो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स होंगे। और ये पहली बार है, जैसे पोलियो मुक्त भारत हुआ, पोलियो मुक्त विश्व हुआ, तो हम सर्वाइकल कैंसर से भी मुक्त हो सकते हैं। हमें वो पूरी स्ट्रैटेजी पता चल चुकी है, और वो स्ट्रैटेजी क्या है? ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, मतलब पूरे विश्व में कारगर है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही इसको अपनाया है। लगभग 90% लड़कियां जिनकी उम्र 15 साल से कम है, अगर वो वैक्सीन ले लें, बॉयज़ भी ले लें तो बहुत ही अच्छा, लेकिन क्योंकि फंड्स की कमी होती है तो लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम सबको वैक्सीन दे दें तो बहुत ही अच्छा। शायद कुछ समय में गवर्नमेंट भी अंडर 15 वैक्सीनेशन फ्री कर देगी सर्वाइकल कैंसर के लिए, लेकिन 15 से 45 साल के बीच में भी ये वैक्सीन ली जा सकती है। तो जिनका 15 साल तक वैक्सीन ना हो पाया हो वो अब ले सकते हैं। और फिर 35 और 45 साल की उम्र में हम सब एक बार अपना गायनिक चेकअप ज़रूर कराते हैं। इंटरनल चेकअप कराएं, उसमें पैप्समियर टेस्ट कराएं, और पैप्समियर टेस्ट के साथ ये वायरस है या नहीं वो भी पता चल जाता है। तो सब ना सही, 4 में से 3 ही सही। अभी तो ऐसा है कि हम पूछते हैं आप में से कितने लोगों ने पैप्समियर कराया, तो बहुत कम लोगों को पता होता है कि पैप्समियर क्या है। आप लोगों में से कितने लोगों ने ओनली 1 2 3 4 ओके। कितने लोगों को पता है कि पैप्समियर करवाना हर साल ज़रूरी? देखिए, पता हम में से काफ़ी लोगों को है, करवाया हम में से काफ़ी कम ने, और हम जिस क्लास को बिलोंग करते हैं वो काफ़ी एजुकेटेड है, अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे स्टाफ होंगे, हमारे शायद ड्राइवर्स होंगे, उन्हें तो शायद मालूम भी नहीं होगा। तो मैं आज एक ये बने मेरा सूरत हेल्दी का 100 रुपीज़ का कार्ड आपको ऑफर करती हूँ। उसमें हम सभी आपके स्टाफ की पैप्समियर फ्री कर देंगे। बट प्लीज़ कम से कम आप अपने स्टाफ को जागरूक करें और उन सबको पैप्समियर के बारे में अवेयर करें। वैक्सीन लेने के बाद भी पैप्समियर तो करना ही है, और 35 और 45 साल में अगर आप करवा लेते हैं तो आप इस कैंसर से बच सकते हैं। और जिनको भी डायग्नोज हो जाए कि कैंसर की शुरुआत हुई है, उनको अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो हम ज़रूर कैंसर मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, और यूट्रस का ऑपरेशन बहुत आसानी से सभी हॉस्पिटल्स में हो जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो जाता है। यानी वैक्सीन ले लो, पैप्समियर कर लो, और अगर कैंसर की शुरुआत हुई है तो ऑपरेशन करा लो। अगर उससे आगे का स्टेज होता है तो रेडियोथेरेपी या
कीमोथेरेपी भी दी जा सकती है ना। तो ये बहुत आसान स्टेप्स हैं और अक्सर हमें पता भी होता है कि वैक्सीन कहाँ कहाँ मिलती हैं। बच्चों के डॉक्टर देते हैं, फैमिली डॉक्टर्स भी देते हैं, लेकिन हम में से कितने लोगों ने अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन लगवा दी है? 2, 3, 4, 5। अच्छा, कितने लोग लगवाना चाहेंगे? वंडरफुल। हम ये सर्विस आपको आपके घर पर भी दे सकते हैं। कंपनी से डायरेक्ट ये वैक्सीन आपके यहाँ पहुँच जाएगी। और वैक्सीन कितने प्रकार की है आप जान लें। आप कौन सी वैक्सीन लेना चाहते हैं वो केवल बता दें, लेकिन ज़रूर अपनी सभी बेटियों को, और अगर पॉसिबल है तो बेटों को भी इस वैक्सीन के बारे में ज़रूर बताएं। 9 से 15 साल तक जब हम ये वैक्सीन दे देते हैं और 35 और 45 साल में हम चेकअप कर लेते हैं तो हम 90% केसेस से बच सकते हैं। मतलब ये जो हमारा डेटा है कि 1.5 लाख मृत्यु, वो तुरंत कम हो सकती है ना। तुरंत मीन्स विद इन कमिंग 10 ईयर्स हमारा जो सपना है वो पूरा हो सकता है। लेकिन ये सर्वाइकल कैंसर होता किससे और वैक्सीन कैसे बनती है? कैंसर के सभी केसेस जब देखे गए तो पता चला कि एक वायरस है, उसका नाम है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और कोरोना कैसे था कि हर बार रूप बदलते जाता था, हर बार नया कोरोना वायरस आ जाता था। जैसे मतलब रावण का एक सिर कटता है तो, है ना। और हम नवरात्रि में माता जी की पूजा करते हैं तो रक्त बीज की कहानी सुनी है किसी ने? है ना। क्या होता है, वो एक बीज से नया असुर पैदा हो जाता है। तो इसी तरह ये वायरस भी लगभग 200 प्रकार का है, लगभग 200 प्रकार का। तो वायरस की वैक्सीन बनाएंगे तो हर बार नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी। तो हमने भी, साइंटिस्ट ने बहुत ही बढ़िया काम किया। हमने उसका कैप्सूल यानी जिससे वो प्रोटीन जिसके अंदर ये पूरा DNA उसका रहता है, उसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन बना ली। तो ये भी पता चल गया कि 95% कैंसर, सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस से हो रहा है। और ये भी मालूम हो गया कि प्रकार बदलते जा रहा है और उससे बचने के लिए हमें क्या करना है। लगभग 6 प्रकार के कैंसर ये वायरस कॉज करता है। बाकी सभी कैंसर्स में हमें पता ही नहीं होता कि मुझे हुआ क्यों। जब हम कैंसर पेशेंट्स 200 या 2000 देखते हैं तो ना वो कभी स्मोकिंग करते थे, वेजिटेरियन थे, एक्सरसाइज भी करते थे, कोई गलत जीवन शैली नहीं थी। अक्सर उन लोगों को कैंसर देखे गए शायद तनाव के कारण, शायद फैमिली हिस्ट्री के कारण। लेकिन अब हमारे पास ऐसा वायरस है जो हमें बता रहा है कि ये 6 कैंसर्स मैं कर सकता हूँ, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, है ना। अब क्या ये मुझे हो सकता है? तो हम सबको वायरल तो रोज होता है, ये कभी गले में होता है, कभी सर्दी होती है, कभी खांसी के रूप में होता है। तो यस, ये वायरस सबको हो सकता है क्योंकि ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से होता है। अगर हम आज 100 लोगों का टेस्ट करें तो 80 लोगों में ये वायरस प्रेजेंट होगा, है ना। और 200 प्रकार के वायरसेस में से केवल कुछ ही स्ट्रेन्स हैं जो कैंसर कर सकती हैं। सबके सब 200 कैंसर कॉज नहीं कर सकती। तो ये HPV प्रेजेंट तो सब में है। टेस्ट करने पे फीमेल्स में तो पैप्समेयर में पता भी चल जाता है कि HPV प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो जैसे वायरल कुछ समय में खुद ही बॉडी से चला जाता है, ये भी चला जाता है। लेकिन अगर हाई रिस्क वाला HPV हुआ तो फिर वो कैंसर कॉज कर सकता है। अगर बॉडी में वायरस गया और धीरे 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 सेल्स में वायरस बढ़ते गया तो भी हमारे पास लगभग 5 से 10 साल का समय है कि वो वायरस कैंसर बना सके। तो अगर इस स्टेज पे भी हमने वैक्सीन ले लिया या ट्रीटमेंट ले लिया तो हम कैंसर से बच सकते हैं। एक नहीं, 6 प्रकार के कैंसर से हम बच सकते हैं। तो कैंसर बनने के लिए क्या जरूरी है? हाई रिस्क वाला HPV वायरस और उसका इन्फेक्शन जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं हुई। तो क्यों ना हम टाइम से चेकअप कराते रहें। अगर परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, हमें पता चल जाए कि हाई रिस्क है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सरल पद्धति से लेज़र तरीके से हो जाता है। और ये भी हम ऑफर, डॉक्टर्स डे है 1 जुलाई को, तो हम लाए हैं कि ये सारा ट्रीटमेंट भी हम चेंबर के लोगों के लिए टोटली फ्री कर देंगे। चाहे वो दूरबीन की जांच हो, चाहे वो कोई लेज़र ट्रीटमेंट हो,
मैं आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर कर दूंगी, आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे भी ये कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जानकारी में कोई भी है जिनको इस तरह की मदद की ज़रूरत है तो आप फ्री लेज़र या फ्री एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शायद आज हम सबको तो पता चल गया कि क्या हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों तक भी ये जानकारी और फ़ायदा जाना ज़रूरी है। 84% कैंसर HPV टाइप 16 और 18 से होता है, यानी ये दो तो मुख्य स्ट्रेन्स हैं जिनके कारण कैंसर होने वाला है। और ये कैंसर कब होगा? क्योंकि ये वायरस अंदर रह गया। अब हमारे पास बहुत सारी तरह की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। आजकल मेंस्ट्रुअल कप्स काफ़ी लड़कियां यूज़ करती हैं, टैम्पून्स यूज़ करती हैं, पहले तो केवल पैड्स ही यूज़ करते थे। तो ये वायरस अंदर इन्फेक्शन क्यों कॉज करता है? क्योंकि हाइजीन का इशू है। तो वेजाइना में यानी योनि मार्ग में जब रक्त निकलता है हर महीने मासिक के दौरान, उसमें अगर स्वच्छता का ध्यान ना रखा जाए, कुछ लोग पैड्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग घर का कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी बार हम देखते हैं कि अंदर कुछ मेंस्ट्रुअल कप डाल देते हैं, या टैम्पून्स भी बच्चियां यूज़ करने लगी हैं क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये जो अंदर रह जाते हैं और कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि उसका कुछ फाइबर अंदर है। मतलब एक काफ़ी एजुकेटेड लेडी मेरे पास आई थी, मुझे बोली कि डॉक्टर मेरा बेटा जब मेरी गोदी में बैठता है तो मुझे बोलता है मुझे बहुत स्मेल आ रही है मम्मा, डॉक्टर आप मेरा चेकअप करो। और मैंने चेकअप किया तो टैम्पून का एक फाइबर यानी टुकड़ा अंदर था, उन्हें पता ही नहीं था। और मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होके तो उनके लगभग 15 दिन हो गए थे। और इस तरह का अगर इन्फेक्शन अंदर रहे तो डेफिनेटली वायरस रहेगा और वो परसिस्टेंट होगा और कैंसर का कारण बन सकता है। ऐसे ही जब हम मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप हम कई बार यूज़ करते हैं, इस महीने, अगले महीने और कई महीने, और उसके हाइजीन का यानी साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना है वो हमें पता नहीं है। शायद हम साबुन से वॉश कर लेंगे, शायद एंटीसेप्टिक से वॉश कर लेंगे, लेकिन उसको कुछ समय के बाद या तो आप बॉईल करें, कौन सी वैरायटी का यूज़ करें, या एक पद्धति होती है जिसमें हम स्पेशल केमिकल से उसको क्लीन करते हैं, जैसे हम ऑपरेशंस के दौरान अपने इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करते हैं। लेकिन गर्ल्स को कई बार ये जानकारी नहीं होती। और मेंस्ट्रुअल कप का प्लास्टिक कौन सा है, कितने दिनों तक वो अंदर आप लगा रहे हो, कितने महीने तक, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। और अनजाने में हम नहीं चाहते कि हमें कैंसर हो या इन्फेक्शन हो, और हमने मोबाइल में देखा, गूगल से मंगा लिया, अमेजोन से, और हम यूज़ कर रहे हैं विदाउट डॉक्टरी एडवाइस। तो ज़रूरी है कि जो भी प्रोडक्ट आप अपनी बॉडी के अंदर यूज़ करें, अभी बहुत फैशन है वेजाइनल वॉश यूज़ करो और अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक्स यूज़ करो, लेज़र हेयर रिमूवल करवाओ, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। लेकिन ज़रूर आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर, जो आपके बारे में जानता है, ये आप करेंगे अगर, तो डेफिनेटली कैंसर से बच सकते हैं। शायद बहुत छोटी बात लगती है हमें, लेकिन हम जब ओपीडी में देखते हैं, हमारे पास गर्ल्स ऐसे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। 12 साल की बच्ची, रात को 2 बजे वो मेंस्ट्रुअल कप अटक गया था, माँ भी रो रही थी, बेटी भी रो रही थी। तो मैंने कहा इतनी छोटी बच्ची को आप क्यों? बोले उसने पढ़ा, उसके फ्रेंड्स यूज़ करते हैं तो उसने भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो कई बार बच्चे अपने पीयर प्रेशर में फ्रेंड्स के साथ या मोबाइल में कहीं से देखकर यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो योनि मार्ग है, इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ले लीजिए, स्लाइड कर लीजिए। ओके, तो ये जो बच्चेदानी का मुख हम देख रहे हैं जहाँ कैंसर है, यही भाग को हम सर्विक्स कहते हैं। और कैंसर यहाँ होने का कारण भी यही कि स्वच्छता का ध्यान नहीं रहा। हमें लगा थोड़ा थोड़ा वाइट पानी जा रहा है, कभी संभोग के बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गया, हल्का हल्का खुजली या जलन होता है, हमें लगता है ये तो सबको होता है, या मैंने कुछ गर्म खा लिया इसलिए मुझे गर्म पेशाब उतर रहा है। ओके, थैंक यू। तो ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन अंदर जब हम चेक करते हैं तो काफ़ी बड़ा कैंसर होता है। और जब डॉक्टरी जांच हम करते हैं तो जैसे कैसे मुख में छाले हो जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से अंदर बच्चेदानी के मुंह पे हमें छाले भी दिखते हैं। और इसको हम कॉल्पोस्कोपी यानी वेजाइना की एंडोस्कोपी, जैसे मुंह खोलकर हम डॉक्टर को 1 ही मिनट में चेकअप करा सकते हैं, उसी तरह से ये चेकअप भी हो जाता है। और इसमें हमें HPV वायरस का भी पता चल जाता है।
तो ये चेकअप बहुत आसान है। कितने लोगों ने अपना अंदर का एंडोस्कोपी कभी डॉक्टर के पास कराया है? कभी भी नहीं। और सिर्फ 1 मिनट का टेस्ट है। मैं चाहूँगी आप ज़रूर आइए, हम आप सभी के लिए हमारी तरफ से करके देखिए, क्योंकि जब वायरस अंदर होगा तो अंदर छाले, जिसको डॉक्टर अक्सर बोलते हैं आपको चांदी हो गई है, सफ़ेद पानी की समस्या है, तो इस तरह से अंदर होता है प्रॉब्लम। और पैप्समियर भी अंदर के पानी की जांच जो हम कहते हैं उसमें एचपीवी वायरस का बहुत आसानी से पता चल जाता है। 1 मिनट का टेस्ट है, सेम डे रिपोर्ट आ जाती है। हम लोगों ने 800 से 1000 पैप्समियर्स एक दिन में पूरे सूरत में किए हैं कई बार। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि कहीं फैक्ट्री में या आपके फैमिली के लिए आप कराना चाहें तो हम आपका पूरा साथ देंगे। तो आप बचेंगे कैसे इस चांदी से, एचपीवी से, इन्फेक्शन से? थ्रू द वैक्सीन। वैक्सीन कहाँ लगेगी? आर्म में, और कहीं बॉडी पार्ट में ये वैक्सीन नहीं लगती। जो हमने सबसे ज़्यादा यूज़ की है वो है गार्डासिल वैक्सीन। प्री फिल्ड सिरिंज में आती है, रेडीमेड होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन ना किया जाए तो वो वैक्सीन कारगर नहीं होती। यानी जहाँ से बनी है और जब तक आपके पास पहुँचे तब तक उसका कोल्ड चेन मेंटेन होना ज़रूरी है। इसका जो कैप्सिड प्रोटीन है एचपीवी का, उसके अगेंस्ट ये काम करती है। यानी हमें वायरस नहीं दिया जा रहा तो हमें बीमारी या कैंसर हो नहीं सकता। सिर्फ अगर वायरस हमारे अंदर आए तो हमारे अंदर पहले से प्रतिरोधक क्षमता होगी। 16 और 18 से 84% कैंसर्स होते हैं। तो एक वैक्सीन है जिसमें केवल 2 वायरस के अगेंस्ट ही काम हो रहा है, उसका नाम है बाइवेलेंट वैक्सीन, और उसका रेट भी काफ़ी कम है, लेकिन वो फुल प्रोटेक्शन नहीं देगी। यस, 84% प्रोटेक्शन वो हमें देंगी। जो हमने सबसे ज़्यादा यूज़ की है, थाउजेंड्स ऑफ डोजेज, वो है क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन। वो है 6, 11, 16, 18। ये एचपीवी टाइप्स के अगेंस्ट वो काम करती है और लगभग 90% ऑफ कैंसर्स को वो संभाल सकती है। उसके अलावा भी जो वॉर्ड्स या मसे होते हैं, जननांगों की बीमारियां होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, उसके लिए भी वो बहुत बढ़िया काम करती है। और एक अब जो लगभग 2 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है नैनोवेलेंट वैक्सीन। और नैनोवेलेंट मतलब वो 9 वायरसेस के अगेंस्ट काम कर सकती है। ये लेटेस्ट है और लगभग 95% कैंसर्स के लिए ये कारगर है। 5% कैंसर्स के लिए ये कारगर इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ कैंसर्स बिना एचपीवी वाले भी होते हैं, कुछ और कारणों से भी होते हैं। तो अभी WHO का ऐसा मानना है कि अगर 1 डोज भी किसी ने लिया है तो भी आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। अभी इंडिया में भी बजट्स के लिए काफ़ी कंपनीज ऐसा करें कि अपने एम्प्लॉयज़ को कम से कम 1 डोज तो लगवा ही देते हैं। लेकिन जैसे बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की, वो कौन सी वैक्सीन है? अमिताभ बच्चन वाली, पोलियो। तो यही हमारा है कि 2 टीके कैंसर मुक्त होने के। तो आप क्वाड्रिवेलेंट या नैनोवेलेंट कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में शायद ये बाइवेलेंट वैक्सीन आने वाली है। ये वैक्सीन सेफ है। हमने गीता दीदी के साथ लगभग 15 साल से जिनको भी वैक्सीन दिए उनका डेटा इकट्ठा किया और उनके पैप्समियर्स में हम चेक करते रहे कि एचपीवी आता है कि नहीं। तो आई एम वेरी प्राउड टू से जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है उनमें से किसी को भी कैंसर नहीं हुआ, किसी के भी पैप्समियर रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आई, उनको वाइट पानी या इन्फेक्शंस की समस्या कभी नहीं हुई, यूट्रस नहीं निकालना पड़ा। ये हमारा पर्सनल 15 साल का डेटा है। हमारी 100 लेडीज को हम फॉलो करते रहे साल दर साल और ये बहुत ही अमेजिंगली इफेक्टिव है। तो न केवल ये इंटरनेशनल डेटा है पर सूरत का अपने यहाँ का भी डेटा है कि वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव है और बहुत ही सेफ है। मैंने थाउजेंड्स ऑफ डोजेस खुद दिए हैं, कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं। हल्का सा लाल कभी होता है या थोड़ा सा दर्द होता है, जो बाकी भी सब वैक्सीन में होता है। कब से शुरू करें, कौन ले सकता है? तो 9 साल के ऊपर जो भी बच्चे बच्चियां हैं सभी को वैक्सीन हम बचपन में ही दिलवाते हैं। पैदा होते ही पोलियो की वैक्सीन, BCG की लग जाती है।
अब जो 60 इयर्स एंड अबव हैं उनके लिए भी हम रेगुलरली वैक्सीन दे रहे हैं कि उन्हें आईसीयू एडमिशंस ना हो, निमोनिया ना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना हो, राइट। तो ये 9 साल की उम्र से हम वैक्सीन दे सकते हैं और जब भी आप वैक्सीन लगवाएं ज़रूर अपना डेटा मेंटेन करें। अपनी बेटी और बेटे के लिए आप सबसे अच्छा गिफ्ट अगर देना चाहते हो तो कैंसर से बचने की ये वैक्सीन दे दो। अब मेरे टॉपिक में एक चीज़ उन्होंने और ऐड की थी कि ऐसा बताएं कि प्रेगनेंसी ना हो, उसको हम बोलते हैं गर्भ निरोधन। कौरव जरूर 100 थे, पांडव जरूर 5 थे, लेकिन अब जो मैरिड कपल्स हैं अक्सर कहते हैं हमें बेबी या तो नहीं चाहिए या 1 या 2 चाहिए, लेकिन लगभग हमारी 400-500 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमें तो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए लेकिन रह गई, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी। और अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शंस, और अबॉर्शंस यानी बहुत सारे डेथ्स और बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस फॉर फीमेल्स, और कपल के लिए भी काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से होने चाहिए? वो होने चाहिए जो सेफ हो, जो भी हम यूज़ करें उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो बॉडी पर। बहुत सारे वैरायटीज़ अवेलेबल हैं और हमें बहुत संभाल के यूज़ करना है कि क्या वो मेरे लिए ठीक है, मेरी फ्रेंड यूज़ करती है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो स्पर्म जब अंदर जाए वो प्रेगनेंसी ना बना पाए, जब मैं चाहूँ तभी मुझे प्रेगनेंसी हो, तो इस तरह की काफ़ी डिवाइसेस और स्पॉन्ज अवेलेबल हैं। मेरे पास एक बच्ची नेपाल से आई थी, उसने 1 साल पहले, वो एयर हॉस्टेस थी, उसने हाथ में एक इम्प्लांट डलवाया हुआ था, वो निकलवाने के लिए आई थी। हर साल वो इम्प्लांट डालना और निकालना पड़ता है, काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है, बट कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पसंद करने वाले लोग वो यूज़ करते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें कि आप स्किन के अंदर डलवा दें और फिर आप उतने समय के लिए टोटली फ्री, लेकिन ये हार्मोन्स वाली चीज़ें होती हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। और इसमें आपको डालते समय निकालते समय दोनों टाइम डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। एंड अभी एक और बढ़िया चीज़ आ गई, गर्ल्स को अक्सर हम देखते हैं पीसीओ की प्रॉब्लम हो रही है, अंडाशय में गांठें हो रही हैं, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, पीरियड्स की समस्या हो रही है। तो ऐसी दवा आ गई है जो आप यूट्रस में रखवा दें तो ये सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं 5 से 6 साल तक के लिए। ये यूट्रस में एक ही बार रखनी है, उसमें बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से सलाह लेकर आप ये करवा सकते हैं। और गर्भ निरोधन के साथ साथ पीसीओ, फाइब्रॉइड, चॉकलेट सिस्ट, ये सभी बीमारियों से आप बच सकते हैं। एक ओएनजीसी के मैनेजर थे, उनकी वाइफ का 3 बार दूरबीन का ऑपरेशन अंडाशय की गांठ के लिए हो चुका था। ये डिवाइस डालने के लगभग 8 साल हो चुके हैं, वो डिवाइस में 2 बार बदल चुकी हूँ, उनको अभी तक दोबारा कोई सिस्ट या गांठ नहीं हुई, वो हर साल चेकअप के लिए आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें साइंस ने ईजाद की हैं। हर महीने हमारे अंदर हार्मोन्स बदल रहे हैं, हर महीने हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। हर साल हम हेल्थ चेकअप कराते हैं, लेकिन वो हेल्थ चेकअप पिछले साल से अच्छा आए ये पॉसिबल है, लेकिन स्टेप तो हमको बढ़ाना है। डॉक्टर के पास एक बार मिलने जाना है और सही डिवाइस यूज़ करना है। बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में जो हर यूट्रस को सूट हो जाए। अगर यूट्रस के अंदर ही कोई मसा फाइब्रॉइड है तो अलग। अब मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जिनको 2 यूट्रस थे, 2 योनि मार्ग थे या आधा यूट्रस था, और उस आधे यूट्रस में भी हमने उनको ट्विन प्रेगनेंसी डिलीवर नॉर्मली करके दी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अंदर होती हैं, लेकिन अगर आप सही डिवाइस का इस्तेमाल करते हो तो आपको रोज़ चिंता भी नहीं होती, शादीशुदा ज़िंदगी भी आप अच्छे से जी सकते हैं और अवांछित गर्भ से भी बच सकते हैं। आई वॉन्ट द वीडियो। ये जो डिवाइस है ये डालने में लगभग 1 मिनट का समय लगता है, और डॉक्टर स्टेप पर हम ये भी ऑफर लेके आए हैं कि जिनको भी अभी अगले 5-6 साल तक बेबीज़ नहीं चाहिए, डिवाइस हमारी तरफ से, उसके साथ 5 साल का चेकअप भी हमारी तरफ से, एक MOU जैसा हम आपको देंगे, सोनोग्राफी, पैप्समियर। लेकिन सिर्फ इतना चाहती हूँ क्योंकि इस हफ्ते मेरे पास 7 बच्चियाँ आई कि मुझे गोली दे दो, मेरी प्रेगनेंसी रह गई है, अभी मुझे नहीं चाहिए। एक तो न्यूली मैरिड थी,
एक अनमैरिड थी और 2-4 ऐसी थी जिनके छोटे छोटे बच्चे 2 महीने के, 6 महीने के, तो गोली देना भी पड़ा। लेकिन बहुत दुख होता है कि फिर वापस फॉलोअप करते रहो, चेकअप करते रहो, अंदर कुछ रह तो नहीं गया, और फिर अगले महीने डर कि वापस ऐसा होगा या नहीं। तो क्यों ना हम अपने परिवार में सबको जागरूक करें कि ये बहुत सारी सेफ चीज़ें अब अवेलेबल हैं, और जब भी आप चाहो आप इसका इस्तेमाल बंद कर दो, आप तुरंत प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, राइट। सो एक ही मिनट में ये डल जाती है। हम सोनोग्राफी में चेक करते हुए ही डालते हैं, पेन भी नहीं होता और 5-6 साल तक आप फ्री रहते हो। और जैसा मैंने कहा डॉक्टर्स डे पर आप सबके लिए ये है, तो आपके स्टाफ, ड्राइवर्स, किसी के लिए भी आपको लगता है कि ये सर्विस, क्योंकि सोनोग्राफी और बाकी चेकअप्स भी हमारी तरफ से हैं। ये देखिए 1 मिनट में ये डल गई, एब्सोल्युटली सेफ, नो साइड इफेक्ट्स। और अगर किसी को सूट नहीं होती है तो भी फॉलोअप में मालूम हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, चेकअप भी बहुत ही आसान है, और जब निकालना हो तो बहुत ही कम समय में तुरंत हम घर जा सकते हैं। कई महिलाओं को ब्लीडिंग की समस्याएं होती हैं, सफ़ेद पानी की समस्याएं होती हैं। अगर पीरियड्स मिस हो जाएं या डॉक्टरी जांच में ये कॉपर्टी या इस तरह की डिवाइस ना मिले तो भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। कई सालों तक आप निश्चिंत रह सकते हैं, आपकी लाइफ में इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये हाईली इफेक्टिव मेथड्स हैं, और अगर निकालना चाहें, आज डाला 6 महीने में निकालना है, 1 साल में निकालना है, तो एक ही सिंगल मोमेंट से ये इजीली निकल जाती है। और अभी तो ये सारे प्रोसीजर्स सोनोग्राफी में देखते हुए होते हैं, तो इट इज़ रियली वेरी कंफर्टेबल। नेक्स्ट, काफ़ी बच्चियाँ गर्भ निरोधन के लिए टैबलेट्स यूज़ करती हैं, लेकिन वो डॉक्टरी सलाह से ही होनी चाहिए। हमारे पास आईसीयू में एक एडमिशन हुआ, लड़की बेहोश थी, शादी होके 6 महीने हुए थे, घर पे किसी को पता नहीं था, वो ये प्रेगनेंसी ना होने की गोलियाँ खा रही थी, तो उसके कारण उनके ब्रेन में क्लॉट्स बन गए थे, और उन्हें भी पता नहीं था कि ऐसा होगा, नहीं तो वो नहीं खाते। तो कई बार अपने फ्रेंड्स से पूछकर हम कुछ टैबलेट्स खाते हैं, लेकिन वो टैबलेट तो हमें रोज़ खानी पड़ती है जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो काफ़ी सेफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और हमें वो बच्ची को बचाने में 20 दिन लगे, अभी वो बिल्कुल ठीक है। हमने उसको अब दूसरा टेक्निक बताया है कि कैसे आप गर्भ निरोधन रख सकते हो, लेकिन इसकी जानकारी होना सबको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, बहुत सारी वैरायटी की पिल्स अवेलेबल हैं। बच्चियों को पिंपल्स होते हैं, बाल आते हैं, तो न केवल गर्भ निरोधन, कैंसर प्रिवेंशन भी इन गोलियों से हो सकता है, लेकिन सही गोली और सही लेडी, ये कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। जितने दिन खाते हैं उतने ही दिन उसका असर होता है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें, आप गोलियां छोड़ दें। कुछ लोगों को लिवर की बीमारी होती है या कैंसर होता है, तो उन्हें ये गोलियां नहीं लेनी चाहिए। एक दिन भी गोली छोड़ने पर उसका असर नहीं रहता, ब्लीडिंग शुरू हो सकती है या उस महीने भी प्रेगनेंसी रह सकती है। नेक्स्ट, तो डॉक्टरी सलाह से आप अपने लिए बेस्ट टैबलेट्स गर्भ निरोधन की चूज़ कर सकते हैं। कई बार किसी को पीरियड्स बहुत आगे पीछे भी होते हैं, उनके लिए भी कई बार हम टैबलेट्स देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं, डॉक्टर ने एक बार लिखी, आप हर महीने या हर साल अपने मन से यूज़ करते जा रहे हैं, वो काफ़ी नुकसानकारी हो सकता है। ये एक इंजेक्शन है। डिलीवरी के बाद अक्सर बच्चियों को पीरियड्स नहीं आते, तो पता ही नहीं चलता कि गर्भ रहेगा या नहीं, और कई बार ड्यूरिंग फीडिंग ही वो सेकेंड टाइम भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। मतलब उनको तो लगता है मेरा मासिक अभी चालू ही नहीं हुआ, लेकिन अंदर 6 महीने का बेबी होता है। ऐसा बहुत बार होता है, और ना वो बेबी को रखना चाहती है और ना वो डिलीवर करना चाहती है। तो ऐसी दुविधा ना हो, इसलिए डिलीवरी के बाद इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं, कई महीने तक काम करते हैं, काफ़ी सेफ होते हैं। इसमें पीरियड्स नहीं भी आए तो भी कोई इशू नहीं है, बेबी भी फीड कर सकता है। बहुत सेफ, बहुत बढ़िया ऑप्शंस अपने यहाँ अवेलेबल हैं। लेकिन क्या हम जागरूक हैं, क्या हम अवेयर हैं? वी आर नॉट, वी शुड बी। इसका कुछ ऐसा साइड इफेक्ट भी नहीं है। नेक्स्ट, सो फैमिली प्लानिंग यानी बेबी बनाना है या नहीं,
ये कॉन्शियस प्रोसेस होना चाहिए जिसमें कपल डिसाइड करता है कि हमें कितने बेबीज प्लान करने हैं, कब करने हैं, हम फाइनेंशियली सेटल हो जाएं तब, हम दूसरे कंट्री में सेटल होना चाहते हैं तब, या अभी एक बेबी हो गया तो कुछ समय चाहिए। लेकिन वो जो बीच का समय है जब नहीं चाहिए, उसके लिए आपको सही स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। इसे हम गर्भ निरोधन ना कहकर गर्भ प्रबंधन कह सकते हैं। प्लानिंग द बेस्ट बेबी व्हेन द कपल इज रेडी, राइट। सो ये ह्यूमन एफर्ट्स जो हैं अगर हम लेंगे तो डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन में भी स्टेबिलिटी आएगी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं होंगे, एबॉर्शंस नहीं होंगे, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, और डिलीवरीज में उतनी मृत्यु दर नहीं है जितनी अनवांटेड प्रेगनेंसीज या अबॉर्शंस में। क्यों? क्योंकि बच्चियां छुपाने के कारण ऐसी ऐसी जगहों पे जाके वो काम करवाती। मेरे पास अभी एक बच्ची महाराष्ट्र से आई थी, उसका 3 months का उसने अबॉर्ट कराया था क्योंकि ससुराल वाले मना कर रहे थे। मायका यहाँ सूरत आई तो मुझे मिलने, उसके इतने खराब क्लॉट्स हमने निकाले, वो उसको कहीं गांव में ले जाकर वो काम करवा के आए थे। तो इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी। इस तरह के पेशेंट्स जब आते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि क्यों इस सब की हमें ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि छुपाना है तो सही जगह नहीं जाते, ऑथोराइज सेंटर नहीं जाते, ऑथोराइज मेडिकल पर्सन नहीं होता, और उसके कॉम्प्लिकेशंस आपका यूट्रस, आपका बॉडी लाइफ टाइम संभाल रहा है। कौन सा इन्फेक्शन लग गया आपको भी पता नहीं होता। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो प्लीज बी अवेयर एंड इन्फॉर्म योर गर्ल्स टू बेस्ट, राइट। नेक्स्ट जिनके बेबीज कंप्लीट हो चुके होते हैं वो कई बार फैमिली प्लानिंग सर्जरीज कराते हैं। ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हो सकता है। बॉयज़ का तो 1 मिनट का ऑपरेशन होता है, उसमें कोई टाँका नहीं होता, कोई कट नहीं लगता। वो सर्जरीज भी हम करते हैं, उसका नाम होता है NSV, नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी। वो हमारे सेंटर पर हम रेगुलरली करते हैं। आप आए, आप सूरत के काफ़ी डॉक्टर्स का हमने ये सर्जरी किया है, आए, कराया और गए। लेकिन अक्सर बॉयज़ को ऐसा होता है कि भाई हम सर्जरी कराएंगे, हमारा स्टैमिना कम हो जाएगा, हमें ऑफिस जाने में तकलीफ होगी, तो फिर लड़कियां ये ऑपरेशन कराती हैं। जब सेकंड डिलीवरी होती है अक्सर साथ में ही हम ये कर देते हैं। जो अंडाशय में से बीज जा रहा था उसे केवल हमने रोक दिया, और अगर दोबारा बेबी प्लान करना है तो उसे जोड़ा भी जा सकता है, और IVF से भी हम बेबी प्लान कर सकते हैं। ऐसे भी केस है कि हमने फैमिली प्लानिंग सर्जरी किया था, उनका डिवोर्स हो गया, तो हमने वापस ट्यूब्स खोल के दिए, फिर उन्हें बेबी बॉय हुआ। तो ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट क्या आप तैयार हैं? क्या आप जानकार हैं? राइट। नेक्स्ट, ये बहुत ही प्यारी चीज़ आई है जिस पे हमने एक इंटरनेशनल स्टडी की। इस डिवाइस का नाम है मिरेना। कॉपर्टी जैसी है, लेकिन फ़ायदा ये है कि ना फाइब्रॉइड होगा, ना बच्चेदानी का साइज बढ़ेगा, ना इन्फेक्शंस होंगे, ना सिस्ट होगी। ये एक डिवाइस न केवल गर्भ निरोधन करेगी बल्कि स्त्री को होने वाली हर समस्या जो 35 साल के बाद होती है, 35 साल की उम्र के बाद जितने भी हार्मोनल बदलाव जो एक स्त्री को डॉक्टर के पास ले जाते हैं वो सभी नहीं होंगे। बहुत ही प्यारी डिवाइस है। हमने 500 से ज़्यादा केसेस का स्टडी करके इंटरनेशनली इसे पब्लिश भी किया है, और ये डिवाइस अभी इंडिया में मेरिल कंपनी भी बना रही है। अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी डिवाइसेस का हो रहा है, वी शुड बी वेरी प्राउड कि हमारे देश में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। आवाज सूरत तभी हेल्दी बनेगा जब हम सब लोग जागरूक होंगे। और इस बारे में आपको अभी कोई भी क्वेश्चंस हों कि वैक्सीन किसको देनी है, कहाँ देनी है, कब देनी है, कितने प्रकार की है, गर्भ निरोधन कैसे करना है, कितने प्रकार का है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, पैप स्मीयर एंड 5 years का फुल सपोर्ट निःशुल्क।
इसमें लेज़र ट्रीटमेंट जब योनि मार्ग ढीला पड़ जाता है, 40 साल की उम्र के आसपास हमारा अंदरूनी भाग ढीला पड़ने लगता है, हम खांसते हैं तो यूरिन निकल जाता है, अक्सर सफ़ेद पानी होता है या खुजली जलन की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका भी पूरा ट्रीटमेंट। जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं उनकी दूरबीन की जांच, ये पूरी ही ट्रीटमेंट्स इस पूरे ऑफर में हैं। थैंक यू सो मच। જી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર મેડમ. આપને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે ક્વેશ્ચન થોડા સ્ટાર્ટ કરીશું, પણ મેડમનો કન્સલ્ટન્ટ ચાર્જ ખૂબ જ ઓછો છે, બરાબર? એટલે કોઈ પણ પર્સનલ ક્વેશ્ચન ન પૂછતા આપ એમની હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈ શકો. કોઈ ઇન જનરલ ક્વેશ્ચન હોય કે તમને તો એ પૂછી શકાય છે. એચપીવી વાયરસ મેલમાં કઈ પ્રકારનું ઇન્ફેક્શન કરી શકે, તો કઈ પ્રકારનું ઇન્ફેક્શન? वेरी गुड क्वेश्चन। HPV वायरस स्किन टू स्किन कांटेक्ट से होता है, जैसे HIV यानी संभोग के रास्ते से। मेल्स में अक्सर वॉट्स यानी मस्से जननांगों पर, और एनल कैंसर, एनल यानी जो गुदा यानी मोशन की जगह, पॉटी की जगह, वहाँ का कैंसर, रेक्टल यानी एनस के ऊपर का जो आंत का भाग है उसका कैंसर, और जेनाइटल एरिया इस पूरे भाग के कैंसर्स, और ओरोफेरेंजियल कैंसर्स और वॉट्स। वॉट, कैंसर, ओरोफेरेंजियल, एनल, रेक्टल एंड प्राइवेट पार्ट्स। जैसे महिलाओं में होता है एग्जैक्टली वैसा ही पुरुषों में भी होता है। So vaccines are same or different? वैक्सीन्स आर एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम एज, एग्जैक्टली सेम डोज। डोज यू वांट टू नो? कोई भी वैक्सीन आप लोगे, चाहे टिटनस की, पोलियो की, हेपेटाइटिस की, डोज कैसे होता है? आज लिया, 1 महीने बाद अगला, और 6 महीने बाद तीसरा। कोई भी वैक्सीन का सेम ही डोज होता है। 15 साल से कम की उम्र में केवल 2 डोज लेने हैं, तो वो 6 महीने के अंतराल पे हम देते हैं। और जो 15 साल के ऊपर के बच्चे हैं, 15 से 45 के बीच में, उसमें हम 3 डोज देते हैं। कभी भी वैक्सीन जब रिपीट की जाती है तो 4 से 6 हफ्ते में बूस्टर दिया जाता है, जैसे बॉडी को याद आ जाए कि ये वैक्सीन से मुझे प्रतिरोधक क्षमता रखनी है, और 6 महीने बाद तीसरा डोज। प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन नहीं ले सकते। मैंने आज 1 डोज लिया, अगले महीने दूसरा डोज लिया, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद मैं तीसरा डोज ले सकती हूँ। कोई डोज मिस हो गया तो नेक्स्ट ले सकते हैं, क्योंकि अभी सिंगल डोज रिकमेंडेशन भी WHO दे रहा है, तो 1 लेना भी कारगर है। 1 ले तो ओके, 2 ले तो अच्छा, 3 ले तो बेस्ट, 15 से कम में 2 बेस्ट। कोई साइड इफेक्ट नहीं, हल्की सी रेडनेस या लाइट फीवर, वो भी थोड़े जो बच्चे सेंसिटिव होते हैं उनको। अदरवाइज हमने 35 बच्चियों को 5 मिनट में डोज दिया, दैट वाज अगेन अ रिकॉर्ड। कुछ नहीं हुआ। हम रोज उनको फोन भी करते थे, अब तुमको कैसा लग रहा है? ये पूरा डेटा हमने इंडिया में लिया कि क्या वैक्सीन है, कैसा काम कर रही है, हमारे देश में कारगर है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये केवल प्रोटीन पे काम कर रही है ना, इसमें कुछ लाइव तो है ही नहीं। वायरस का जो कैप्सिड प्रोटीन है, जिसमें वो वायरस DNA है, उस प्रोटीन के अगेंस्ट हमने एक एंटीडोट बना दिया है। तो जब भी वायरस आता है वो खत्म हो जाता है, उसकी दीवार ही गिर जाती है, कुछ भी नहीं होता। और जिन लोगों को वॉट्स हैं उनको भी हमने वैक्सीन दिया, वॉट्स झड़ गए, क्योंकि अदरवाइज वॉट्स आप एक बार निकलवाओ, वापस निकालने पड़ते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये भी बहुत ही मतलब, हालांकि बुक्स में ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने यूज़ किया तो वाइफ को वॉट्स बार बार हो रहे थे, तो हस्बैंड को भी वैक्सीन दिया, तो फिर उनको वॉट्स होना बंद हो गए। वो लोग भी ले सकते हैं। और अभी ये भी डेटा है कि HPV हार्ट इशू भी कर रहा है, क्योंकि ओरोफेरेंजियल एरिया तक ये पहुंच गया। हमारे देश में उतना कॉमन नहीं है, लेकिन ओरल सेक्स वेस्टर्न देशों में काफ़ी कॉमन है, और ये वायरस उसी एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। तो कार्डियक इश्यूज भी इस वायरस के कारण हो रहे हैं, और ये वैक्सीन देने से उस पर भी बेहतर रिजल्ट सामने आ रहे हैं, पर अभी पूरा साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है।
होल लाइफ चलता है। 3 डोज जिसने भी ले लिया उसको पूरी जिंदगी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बॉडी में मेमोरी आ जाता है। जैसे ही वायरस वापस आएगा वो अपना प्रोटेक्शन चालू कर देगा। 100%, 100 नहीं 95, 5% for cervical cancer because the reasons are different. 5% more important. Because the reasons are different. When it is HPV, it is 100% effective. अगर कारण HPV है तो वो 100% इफेक्टिव है। मतलब मेरे पास काफी ज्यादा डेटा, क्योंकि हम डॉक्टर्स को जब ट्रेन करते हैं तो बहुत रिसर्च वाली चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में हमने लगभग 1.5 लाख पेशेंट्स का डेटा, बिकॉज हमारे यहाँ डेटा कीपिंग उतना अच्छा नहीं, हम लोग काम बहुत करते हैं इंडियंस, लेकिन ना हम पब्लिश करते हैं ना हम डेटा एनालिसिस उतना अच्छे से करते हैं। तो 1.5 लाख पेशेंट्स का डेटा इकट्ठा किया, 15 साल से कम की बच्चियों को वैक्सीन दिया, 15 से ऊपर वालियों को दिया और उन्हें 20 साल फॉलो किया। तो कितने कैंसर के केसेस आए, कितनों को HPV पॉजिटिव आया। ये बहुत ही बढ़िया डेटा है एंड इट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी सेफ। हाँ, ये આપણે એક એક કરીને પૂછીએ બેન, બોલજો। 2000, 4000 और 11000, एक वायरस का 1000 अप्रोक्स, और ग्रुप बुकिंग्स में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है। હાલો ગ્રુપ 1 9 થી 14 વર્ષ। હવે એમાં તમારા કહેવા પ્રમાણે આપણને 2 વેક્સિન મુકાવવાની, બરાબર છે? બરાબર। હા, તો એનો ચાર્જ શું હોઈ શકે? 2 વેક્સિન एक्चुअली अलग अलग कंपनीज की वैक्सीन अलग अलग रेट्स पे अवेलेबल हैं, उनकी एफिकेसी में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है। नैनोवैलेंट वैक्सीन लगभग 10,500-11,000 की है, क्वाड्रीवैलेंट लगभग 3,500 की है और बाइवैलेंट लगभग 1,500 की है। लेकिन जब हम ग्रुप बुकिंग करते हैं, हम 150 मतलब 50 बच्चों को अभी हमने एक CSR एक्टिविटी में एक स्कूल में 8वीं 9वीं कक्षा की बच्चों को फ्री वैक्सीन दिलवाया। अभी उनका सेकंड डोज भी हमने साथ में ही ले लिया स्टोर करने के लिए। तो कंपनी ने हमें बहुत अच्छा ऑफर दिया। ऐसे बहुत अच्छे डोनर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी CSR एक्टिविटीज की हैं। हाँ, तो अभी रेडियन स्कूल में फ्री दिया है हाँ, वैक्सीन, yes, और महेश्वरी वाला में भी फ्री दिया है। यस यस ये सब मेरे पास बात आई है। Yes. लेकिन हमको भी कैंप करना है सब संगठन के साथ जी। 8वीं जुलाई के बाद। तो इसमें क्या होगा? इसमें हम 1 एक बार- મિનિટ 1 મિનિટ Yes. 9 થી 14 વર્ષનું એક ગ્રુપ અમે નક્કી કર્યું છે, અને બીજું છે 15 થી 26 વર્ષનું ગ્રુપ। એને માટેની અમારે વિડીયો બી બનાવેલો છે, ઓડિયો બી, અને અમે એ બધે મોકલો પણ છે, અને અમારી પાસે નામ પણ આવે છે। હવે એમાં થાય છે શું કે જેમણે પહેલાં ગાર્ડિયન સીલ જે તમે કહી એ વેક્સિન 3500 રૂપિયાની મુકાવી છે કોઈ ગાયનિક પાસે। હવે જો બીજી મારા કેમ્પમાં એને મુકાવી હોય તો અમે જે નક્કી કરીએ એ મુકાવી શકે કે નહીં મુકાવી શકે, કે પેલી જ મુકાવી પડે? पहली मुकावो तो सारा। એ જ મુકાવી थायरॉइड પડે। ની પણ ગોળી હોય ને, બ્રાન્ડ ચેન્જ કરો ને તો રિઝલ્ટ જુદા આવે। એમ ઓડ અસર તો ના થાય, પણ સેમ બ્રાન્ડ ની મુકાવો તો વધારે પ્રતિરોધક ક્ષમતા મળશે, બોડી રિકોગ્નાઇઝ કરે છે। અને બીજી વસ્તુ કે ઇન્ડિયન અને ઇમ્પોર્ટેડ એ બેમાં બી બહુ ડિફરન્સ છે, બહુ તો difference બંનેની ઇફેક્ટ સરખી છે કે અલગ છે? જો પ્રોટેક્શન બંનેમાં સારું છે, પણ એફિકેસી ફોરેન વાળીમાં વધારે છે। પણ હવે જેની કેપેસિટી નહીં હોય તો લઈ તો શકે। પછી હા, તો આવી લઈ એની શકે। બી એટલી ઇફેક્ટ તો ખરી જ ને? ઇફેક્ટ છે। જો ડેનિમની બ્રાન્ડ નહીં વાપરીએ તો બીજી સાદી જીન પણ ચાલે। બરાબર। હું પોતે મોડવનિક મહિલા મંડળ Vaccine નહીં પ્રેસિડેન્ટ લઈએ। મીનાક્ષી બોડાવાલા। यस आई नो यू मैम, ફોન કરેલો वेरी મેં। नाइस या। सो सी, अगर बिल्कुल ही पैसा नहीं है तो 1,500 की वैक्सीन तो ड्राइवर भी हमारा ले सकता है 500 रुपए महीना इकट्ठा करके। नहीं लेने से कोई भी ब्रांड लेना भला, 2 डोज नहीं ले सको तो 1 लेना भला। ऐसे बोलते हैं ना, प्रभु का नाम हमेशा सिमरिए, है ना, पल पल सिमरिए। पल पल नहीं हो रहा है तो एक बार બોલો જય શ્રી રામ। 1 મિનિટ। તો હવે એનો ગેપ કેટલો રહેશે? માનો કે 1 જુલાઈમાં રવિવારે મુકાવી 10 કોઈ બી રવિવાર, પછી બીજી જે મુકાવાની હોય એ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો આવે? 6 મહિના, 15 6 વર્ષથી ઓછી ઉંમર હોય તો 6 મંથ્સમાં સેકન્ડ ડોઝ। 2 નવરાત્રી, બે, અને પેલામાં 15 થી 26 વાળા માટેનો 3 ડોઝ। 3 ડોઝ આવે। 0, 1, 4 ચાલે, નહીં તો 0, 2, 6 પણ ચાલે। તો એમાં દરેક કંપનીની અલગ આવે છે કે એનું કન્ટેન્ટ જે હોય તે બધું સેમ જ હોય કે નામ અલગ હોય? ઓલમોસ્ટ સેમ છે મેડમ, પણ હજુ ઇન્ડિયનનું રિસર્ચ આટલું બધું નથી થયું। ફોરેન વાળી 20 વર્ષથી ઉપલબ્ધ છે। પોતે હું ઇટલીમાં
કેન્સર કોન્ફરન્સમાં જઈને આ બધી રિસર્ચ કરીને આવી છું આ વેક્સિન ઉપર. પછી ઇન્ડિયામાં ચાલુ કરેલું 15 વર્ષ પહેલાં. તો ડેટા ઓછું છે, એફિકેશિયસ તો છે, પણ હજુ ડેટા મળશે તો વધારે કોન્ફિડન્સ આવશે. બોયઝમાં સેમ એજ 9 years and above. Same, because it is skin to skin contact, important for both partners. But because funding, we are a huge nation. So at least for girls, and it is very deep. Cervical part બહુ deep છે body. Internal છે, ખબર નથી પડતી. Breast તમને ખબર પડી જાય, તમે ચેક કરી શકો. But cervical cancer બહુ fast. અમે આ કેસીસ જોઈએ તો every week 4 to 5 cases. યુટ્રસના સર્જરીના, કેન્સરના. મેડમ મેક્સિમમ એજ લિમિટ શું છે પુરુષોમાં? 45. અપ ટુ 45. 45 પછી કયો ઓપ્શન સર? રેગ્યુલર ચેકઅપ અને બીજી વેક્સિન્સ છે, કેન્સરવાળી નથી પણ બીજા ઓપ્શન્સ છે સ્વસ્થ જીવન માટે, કેન્સર મુક્ત જીવન માટે. There is a school of thought going on. I would like to know your expert comment. કે વેક્સિન રેઝિસ્ટન્ટ છે કે જે કોરોનામાં પણ જોયું કે કોરોનાની વેક્સિન છે કોરોના તો રાહત થઈ ગઈ પણ બ્લડ પુટિંગ અને હાર્ટ એટેકના પ્રમાણમાં વધારો થયો. And there are reports that because of the corona vaccine is happening. So what is your general view about the vaccination? 5% માં બધું થાય છે સર. આ 95% વેરી વેરી સેફ એન્ડ ઇફેક્ટિવ છે અને અમારા જેવા દેશોમાં સારું રહેશે કે દરેકને વિનંતી છે કે બેસજો. આપ જેના માટે નીચે જઈ રહ્યા છો એને પણ વાર જ લાગશે, એટલે આપને દરેકને વિનંતી છે કે 12 વાગશે જ નીચે પણ. only 5% sir. So better to protect 95%. I mean I'm riding, I can fall, but with helmet if I go at least I'm 95% safe. બહુ બધી વેક્સિન્સ છે. ન્યુમોકોકલ વેક્સિન છે લંગ્સ માટે, ફ્લૂ શોટ્સ આવે છે ઇન્ફ્લુએન્ઝા માટે, હેપેટાઇટિસ A અને B અને ટાઇફોઇડ, ટેટનસ ની વેક્સિન 45 પછી નથી. આમાં સ્ક્રીનિંગ આવે છે, HPV ની સ્ક્રીનિંગ. કેમ કે મેનોપોઝ આવવાની તૈયારી હોય તો ધીમે 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 સર્વિક્સના સેલ્સ અંદર જતા રહે, તો આમાં વાયરસ ઇન્ફેક્શન નહીં કરી શકે. 60 પછી રેગ્યુલર ચેકઅપ છે. દાદા હા, આની લિંક યુટ્યુબ પર આવી જશે, તો આપ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ સર્ચ કરશો યુટ્યુબ પર તો આપને દરેક વિડીયો જોવા મળશે. અને અમારા આગલા કાર્યક્રમો, આવા પછીના કાર્યક્રમોનું પણ અમે ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, યુટ્યુબ દરેક પર મૂકતા હોઈએ છીએ. તો આપ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને ફોલો કરજો, તો આપને આગળના કાર્યક્રમોની પણ માહિતી મળશે. એમાં રજિસ્ટ્રેશન લિંક હોય છે, તો આપ ભરીને આવો તો વધારે સારું. ના, પહેલા જ મુકાવી દેવાની. ઇમ્યુનોજેનિસિટી, રોગ પ્રતિરોધક ક્ષમતા 9 years and above વધારે હોય છે. 15 પછી કે પીરિયડ્સ ચાલુ થાય આની રાહ જોઈએ તો ઇમ્યુનોજેનિક રેસ્પોન્સ બોડીમાં ઓછું હોય છે. તો 9 years પછી મુકાવી પીરિયડ્સની રાહ નહીં જોવાની. જી મેડમ, અહીંયા રોકાશે 10-15 મિનિટ માટે, એટલે આપણે જી મેડમ. યસ, વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. ડેપો પ્રોવેરા ડૉક્ટરની સલાહથી તમે ઇયર્સ માટે ચાલુ રાખી શકો. આમાં ક્યારે બોન ડેન્સિટી ઓછી થાય છે તો સાથે કેલ્શિયમ, વિટામિન D આપવામાં આવે છે. અને યુટ્રસમાં ફાઇબ્રોઇડ્સ નાના બહુ બધા હોય તો તમે બેલેના મૂકાવો 6 મહિનામાં સોનોગ્રાફીમાં ડૉક્ટર જ્યારે જોઈ તો આ શ્રિંક થતા જાય. અને ક્યારે શ્રિંક ના થાય તો આપ એવી પણ ખબર પડે કે કેન્સર થવાની શક્યતા છે કે નહીં. પણ 5 years માટે આ બહુ વધુ રિઝલ્ટ આપે છે. અને ઇન્ટરનલ લાઇનિંગમાં, પીરિયડ્સમાં બહુ સારો રિઝલ્ટ છે મેરેનાનો. મેની પેશન્ટ્સ મેં આઈ હેવ ચેન્જ 3 times, લાઈક 35, 40, 45 એમ પછી મેનોપોઝ આવી ગયું. તો વેરી ઇફેક્ટિવ, બોથ આર વેરી ઇફેક્ટિવ. યસ મેમ, પન્ના મેમ. દેખા
ઇરેગ્યુલર થઈ જાય છે. યસ. જો જ્યારે તમે હોર્મોનનું ડોઝ બોડીમાં આપો એક હેવી લેવલમાં ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર, તો બોડીમાં ઇસ્ટ્રોજન કેટલું છે? હેવી બોડી લેડી છે, યુટ્રસ હેવી છે, એન્ડોમેટ્રિયોસિસ છે, ઓવેરિયન સિસ્ટ છે, તો ઇસ્ટ્રોજનનું પ્રમાણ વધારે છે, બરાબર. તમે પ્રોજેસ્ટ્રોન આપશો તો બેલેન્સ થઈ જશે. પણ લીન પેશન્ટ છે, કોઈ એવી પ્રોબ્લેમ નથી, તો બહુ ઇરેગ્યુલર સ્પોટિંગ ચાલુ રહેશે. આમાં પછી તમને ઓરલ પિલ્સ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ જેવી કોઈ આપવી પડશે તો બેલેન્સ થશે. તો તમે પેશન્ટ ચૂઝ કરો અને એકોર્ડિંગલી ડોઝ આપો. નહીં તો ઓછું ડોઝ પણ આપી શકાય વેટ પ્રમાણે, તો એવી સાઈડ ઇફેક્ટ્સ ના થાય. અને ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, બોન સ્ટ્રેન્થ આમાં જોવી પડે. પેશન્ટને ઓલરેડી વીક બોન્સ છે, થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ છે, જોઇન્ટ્સમાં દુખે છે, ફેમિલી હિસ્ટ્રી છે ફ્રેક્ચર્સની, તો નહીં આપવાનું. પેશન્ટ પ્રોફાઇલ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઈચ ડ્રગ એન્ડ ફોલો. થેન્ક યુ સો મચ મેમ. મેડમ અહીંયા રોકાશે, તો આપને કોઈ પર્સનલ ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો 10-15 મિનિટ મેડમ અહીંયા જ છે, આપ એમનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર મેડમ. આ સાથે જ કહેવાય ને કે સારા વક્તા અને શ્રોતા દરેક જગ્યા પર મળી રહેતા હોય છે, પણ આયોજનકર્તાઓ હંમેશા દુર્લભ હોય છે. તો અમે સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આ સાથે જ દરેક મિત્રો જે સ્ટાફ છે તેનો પણ આભાર માનીએ છીએ. આ સાથે જ હું સોનિયા મેડમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને બોમ્બે હોસ્પિટલનો આભારી છું કે આ ખૂબ જ મજાનો એક સુંદર કાર્યક્રમ કર્યો. અને એક તાળી તમારા માટે થઈ જાય કે આપે ખૂબ જ ધીરજથી અહીં રાહ જોઈ એના માટે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આ સાથે અમે મહેશ સરનો પણ આભાર માનીએ છીએ કે આ બિલ્ડિંગના અમને ખૂબ જ સરસ રીતે ઉપયોગ કરવા માટે આપ આપી રહ્યા છો એના માટે. થેન્ક યુ સો મચ.